بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو قسط نمبر 20 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، شکریہ۔ اماں، آپ کو پتہ ہے فائقہ لندن سے آ گئی ہے۔ اعظم خود تو حیران تھے ہی، اپنی اماں اور اسما کو بھی بتا کر حیران کر دیا۔ اچھا، کب آئی؟ ان کی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، انہوں نے بتایا تو اسما اچھل کر بولی۔ 1 ہفتہ؟ اور آنا تو دور کی بات، فون بھی نہیں کیا اس نے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ میں آفس سے سیدھا پھپھو کے ہاں چلا گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ بڑی بے مروت نکلی، اسما نے کہا تو انسنی کر کے اماں سے بولے، پتہ نہیں ان کے ہاں کیا رواج ہے، آپ کب بلا رہی ہیں اسے؟ ہاں بلانا تو ہے، اور میرا خیال ہے چھٹی کا دن ٹھیک رہے گا، اماں نے کہا تو فوراً بولے، میرا بھی یہی خیال ہے، اور میں کل ہی جا کر شہریار کو اتوار رات کے کھانے کی دعوت دے آؤں گا، یا آپ کو دوپہر کی سہولت ہو تو؟ نہیں، رات کا کھانا ٹھیک ہے، آرام سے ہر چیز بن جاتی ہے، اماں نے پہلے اسما سے بول پڑی۔ اور ہاں ان سے کہیے گا جلدی آئے، یہ نہیں کہ مہمانوں کی طرح کھانا ہی پر آ رہی ہیں، اب یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اگلے روز جب وہ آفس سے نکلے تو شام ڈھل چکی تھی، جس سے وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ آیا انہیں اس وقت فائقہ کے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ پھر یہ سوچ کر وہ کھڑے کھڑے ہی اس سے مل کر کھانے کی دعوت دے کر چلے آئیں گے۔ انہوں نے گاڑی اس کے گھر کے راستے پر ڈال دی تھی، اور جب وہ اس کے بنگلے کے سامنے گاڑی سے اتر رہے تھے تو اسی وقت بڑا گیٹ کھلنے پر وہ رک کر دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وائٹ وی ٹی آئی باہر نکلی، لیکن پھر ان کے قریب رک گئی۔ اعظم بھائی! فائقہ فوراً اتر کر ان کے قریب آئی تھی۔ ہم آپ ہی کی طرف جا رہے تھے، خیریت سے ہو؟ انہوں نے اس کے کھلتے چہرے پر بس ایک نظر ڈال کر پوچھا تو ان کے مخصوص انداز پر بے ساختہ مسکرائی۔ تبھی شہریار آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ میرے گھر جا رہے تھے تو چلیں، اعظم نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو آپ آ گئے ہیں، آئیے اندر چلیں۔ شہریار نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے واپس اندر کا رخ کیا تھا۔ کیسے ہیں اعظم بھائی آپ، اور گھر میں سب؟ فائقہ نے ڈرائنگ روم میں انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، مجھے کل پھپھو سے معلوم ہوا کہ تم آ چکی ہو، انہوں نے جتایا نہیں تھا بلکہ سیدھے سادے انداز میں کہا تھا۔ جی، مجھے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور میں نے جان بوجھ کر آپ کو فون نہیں کیا کیونکہ میں اچانک آپ کے ہاں آنا چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ چلو پھر کسی دن اچانک آ جانا، انہوں نے کہا، پھر شہریار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں اسپیشلی آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ شہریار نہ سمجھنے والے انداز میں فائقہ کو دیکھنے لگا تو اس نے پوچھ لیا، کس سلسلے میں اعظم بھائی؟ کوئی سلسلہ ہونا ضروری تو نہیں، ویسے یہ انویٹیشن تمہاری شادی کی خوشی میں ہے۔ اتوار کی شام آپ دونوں کھانے پر ضرور آئیے گا، انہوں نے آخر میں شہریار کو دیکھ کر کہا تو مسکرا کر بولا، آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں۔ پھر فائقہ سے بولا، بھائی کوئی چائے وائے، بلکہ نہیں کھانا لگوا دو۔ ہاں، فائقہ فوراً اٹھی تھی، لیکن اعظم نے روک لیا۔ نہیں پلیز، کھانے کا تکلف نہیں کریں، ویسے بھی میں اتنی جلدی کھانا نہیں کھاتا۔ یہ جلدی کہاں ہے اعظم بھائی، بس تم چائے پلا دو، انہوں نے کہہ کر فائقہ آنکھوں سے اشارے سے بھی منع کیا تو مزید اصرار نہیں کیا اور چلی گئی۔ تب شہریار پوچھنے لگے، آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ وہ اپنی فرم کا نام بتا کر کہنے لگے، مجھے اس فرم میں 8 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں۔ کبھی ہماری فرم کا چکر لگائیے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آؤں گا، انہوں نے کہا۔ تبھی بیگم آفندی آ گئیں۔ السلام علیکم۔ اعظم انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیگم آفندی سرسری نظر ان پر ڈال کر شہریار سے مخاطب ہو گئیں۔ شہری، مجھے لاہور کے ڈیلرز بہت مایوس کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تم لاہور جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے آؤ۔ جی ماما، ابھی تو آپ ان سے ملیں، یہ فائقہ کی کزن ہے۔ اعظم! شہریار کو بیگم آفندی کا اعظم کو نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ فائقہ کے کزن؟ بیگم آفندی ان کی طرف متوجہ ہوئیں اور پھر یوں ظاہر کیا جیسے آپ پہچانا ہو۔ اچھا اچھا، ہاں شادی میں دیکھا تھا، بیٹھو۔ شکریہ، اعظم بیٹھتے ہوئے بولے۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، تمہاری گھر میں سب خیریت ہے؟ بیگم آفندی نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ جی، آپ آئیے کسی دن، اعظم نے کہا۔ تبھی فائقہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے آ گئی تو بیگم آفندی سے دیکھ کر بولی، چائے؟ بیٹا یہ کھانے کا وقت ہے۔ جی، لیکن اعظم بھائی کھانے کو منع کر رہے ہیں، فائقہ نے کہا تو پیار بھری سرزنش کے ساتھ بولی، بیوقوف لڑکی، یہ تو مہمان ہیں، تکلف کریں گے، جاؤ رشید سے کہو جلدی کھانا لگائے۔ جی، فائقہ کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، اعظم کو دیکھا اور وہ منع کرنا چاہتے تھے
बेगम आफंदी इससे बोली, जाओ बेटा। अंदाज ऐसा था जैसे सुना नहीं तुमने, और ये वही समझी थी जब ये फौरन पलट गई थी। अज़ाम खां से जुज़बुज़ हुए और खाना भी उन्होंने गो के बराए नाम ही खाया था, फिर भी अपने आप में अजीब सा महसूस करते रहे कि वो तो इन्हें दावत देने आए थे और इससे पहले खुद इनके यहाँ मेहमान हो गए। मज़ीद खाने के बाद फ़ौरन बात जाने का भी नहीं कह सके और चाय तक इन्हें बैठना पड़ा था। शहरी, तुम आज लाहौर जा रहे हो? ताहिर साहब तुम्हारे साथ जाएंगे। नाश्ते की टेबल पर बेगम आफंदी शहरियार से कहा तो वह हैरान हुआ। आज? हाँ, ब्रीफ केस में अपना एक आध सूट रख लो, ऑफिस ही से ताहिर साहब के साथ चले जाओ। बेगम आफंदी इनकी हैरत नज़रअंदाज करके बोली, लेकिन मामा, मैं चाह रहा था फ़ायका का वहाँ कोई काम नहीं है। वो इसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, तुम्हें डीलर से मिलना है और 2 दिन में वापस भी आ जाओगे। 2 दिन? वो फ़ायका को देखने लगा तो इसने टेबल के नीचे इसके पैर पर पैर मारकर मामा की मौजूदगी का एहसास दिलाया। मामा, आप ज्यादती कर रही हैं। शहरियार ने एहतजाज किया। क्या ज्यादती बेटा? क्या चाहते हो तुम? मैं जाऊं, डीलर से बात करूं? बेगम आफंदी इसका मतलब समझने के बावजूद अनजान बनकर बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे जाने से इनकार नहीं, बस आप ताई साहब को यहीं रोकें, मैं फ़ायका को साथ ले जाऊंगा। शहरियार की वजाहत पर वो कदर सख्ती से बोली, नहीं, ताहिर साहब का जाना ज़रूरी है। फिर फ़ायका से बोली, जाओ बेटा, ब्रीफकेस में इसके 2 सूट रख दो। जी। फ़ायका उठकर चली गई और जिस तरह शहरियार भी फ़ौरन उठकर इसके पीछे गया। इससे वो तिलमिलाकर बड़बड़ाई, नॉनसेंस, सारी दीवानगी भूल जाएगा जब मैं इसे बेनकाब करूँगी। और फिर इसी रोज़ वो शहरियार को लाहौर रवाना करके शाम को जब लौटी तो फ़ौरन कोई ऐसा तासुर नहीं दिया जिससे फ़ायका खाइफ होती या वो ख़ुद को अकेला महसूस करती। इसके बरक्स रात को बड़ी मोहब्बत से बोली थी, बेटा, तुम्हें अगर अकेले में डर लगे तो मेरे कमरे में आ जाना। नहीं मामा, अपने घर में, और मैं डरूंगी क्यों? फ़ायका ने कहा तो वो कज़न अनसुनी करके पूछने लगी, शहरी का फ़ोन आया था? जी, लाहौर पहुँचते ही उन्होंने फ़ोन किया था, इसने बताया। तो वो तसल्ली आमेज़ लहजे में बोली, आ जाएगा, 2 दिन में, परेशान नहीं होना। जी। वो अंदर ही अंदर हैरान हुई, बस यही कह सकी। तभी फ़ोन की बेल बज उठी। शहरी होगा, देखो। वो जाने किस मूड में थी। मुस्कुराकर फ़ायका को फ़ोन उठाने का कहकर खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मामा, फ़ायका के पुकारने पर वो पलट कर सवालिया नज़र से देखने लगी। कोई इसफंदियार साहब हैं? फ़ायका ने माउथ पीस पर हाथ रख कर कहा तो उन्होंने तीर किसी तेज़ी से आकर इसके हाथ से रिसीवर झपट लिया और पहले इससे बोली, तुम अपने कमरे में जाओ। फ़ायका कुछ खाइफ सी होकर फ़ौरन तेज़ कदमों से अपने कमरे में चली गई। तब वो रिसीवर कान से लगा कर बोली, तुम बाज नहीं आओगे, बंद करो ये सिलसिला, अभी तो शुरुआत है मैडम। इधर से इत्मीनान से कहा गया, शट अप। वो रिसीवर पटकने लगी थी कि उधर से फ़ौरन कहा गया, फ़ोन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा रिंग कर सकता हूँ। स्टूपिड, क्या चाहते हो तुम? उन्होंने जिस तरह झिझला कर कहा, इधर वो इस कदर मज़े लेकर बोला, हाँ, अब की है ना आपने काम की बात। क्या चाहता हूँ मैं? मेरे दर से तुम्हें कोई भीख नहीं मिलेगी। वो फ़ौरन ज़हर कंद से बोली थी, मैं भीख नहीं, अपना हक़ मांग लूँगा। इसके मजबूत लहजे पर वो एक लहजा रुक कर बोली, सुनो, तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैं भी आपको नहीं जानता, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता और पहचानता हूँ कि मैं जीलान आफंदी की पहली नरीना औलाद, यानी पहला वारिस इसफंदियार वली हूँ। इसका लहजा हनूस मजबूत था। मज़ीद चबा चबा कर बोला था, क्या सबूत है तुम्हारे पास? वक्त आने पर सारे सबूत के साथ आऊँगा। इसने कहा तो तंजिया लहजे में बोली, मैं इंतज़ार करूँगी। इसके साथ ही उन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और कुछ देर वहीं खड़ी तनफ़्फ़ुर से इसके बारे में सोचती रहीं। फिर सर झटक कर अपने कमरे में आ गई, लेकिन जहन पर इसकी तरफ चला गया और गो कि वो उससे खाइफ नहीं थी। अलबत्ता ये ख़दशा था कि कहीं वो शहरियार या फ़ायका से कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, जैसे अभी फ़ायका ने फ़ोन रिसीव किया था और ये तो इत्तफ़ाक़ था कि वो मौजूद थी। अगर वो घर पर ना होती तो जाने वो इससे क्या कहता, जबकि वो ख़ास तौर से शहरियार को तो इसके बारे में बताना ही नहीं चाहती थी। और अब वो यही सोच रही थी कि इसे यहाँ फ़ोन करने से कैसे रोकें। गोया वो खुद इसे हकीकत को तस्लीम कर रही थी कि वो जीलान आफंदी का बेटा ही है। हालांकि इनके लीगल एडवाइज़र इब्रार कुरैशी ने इन्हें बताया था कि जीलान आफंदी की पहली बीवी और बच्चे एक हादसे का शिकार हो गए थे और इस वक्त इन्हें इनकी बात पर यकीन आया भी था और नहीं भी। बहरहाल इस वक्त उन्होंने बहुत सोच कर इब्रार कुरैशी को फ़ोन कर डाला। इब्रार साहब, मैं बेगम आफंदी। उन्होंने इब्रार कुरैशी की आवाज़ सुनते ही कहा, जी बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत डिस्टर्ब हूँ इब्रार साहब,
बल्कि मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। उन्होंने कहा तो इब्रार कुरैशी ताज्जुब से बोले, खैरियत, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पता नहीं इब्रार साहब, हर दूसरे दिन किसी न किसी आदमी का फ़ोन आ जाता है। हर एक खुद को जिलान आफंदी का बेटा कहता है। उन्होंने लाइल्मी का इजहार करके बताया तो इब्रार कुरैशी मज़ीद ताज्जुब से बोले, क्या मतलब? कोई एक आदमी नहीं है? नहीं, हर बार नई आवाज़ सुनाई देती है। आप तो जानते हैं जिलान साहब की पहली बीवी का एक ही बेटा था और वो भी शायद एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। फिर ये इतने सारे बेटे, उन्होंने तशवीश के साथ कहा तो इब्रार कुरैशी पूछने लगे, आपने नंबर नोट किया? आप भी कमाल करते हैं इब्रार साहब, ऐसे फ़ोन अपने नंबर से कौन करता है? उन्होंने टोक कर कहा तो इब्रार कुरैशी सोचते हुए अंदाज में बोले, हाँ, बहरहाल आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूँ? आप जानते हैं शहरी के लिए किसी भी किस्म की टेंशन कितनी ख़तरनाक हो सकती है। अगर इसे मालूम हो गया और इसने इस बात को सीरियसली ले लिया तो नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसा नहीं होगा। इब्रार कुरैशी तसल्ली देते हुए कहने लगे, अब ऐसा करें, शहरियार को खुद बता दें। नहीं, वो बहुत जज्बाती और हसास है। मैं इसके सामने घर की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जिक्र भी नहीं करती। उन्होंने इब्रार कुरैशी का मशवरा रद्द कर दिया। लेकिन बेगम साहिबा, ये तो आपको बताना पड़ेगा ताकि अगर किसी दिन शहरियार ऐसा कोई फ़ोन अटेंड करे तो परेशान ना हो, बल्कि वो सहूलत से फेस कर सके। इब्रार कुरैशी ने समझाते हुए कहा तो इस बार वो सोचते हुए बोली, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराती, या मैं करा दूं? नहीं, मैं पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। हाँ, अगर बात टेढ़ी ज़्यादा बढ़ी तो फिर यकीनन पुलिस की मदद लेना पड़ेगी और इसके लिए मैं आपसे ही कहूँगी। फ़िलहाल मैं ज़रूरी नहीं समझती। अच्छी बात है, मेरे लायक और कोई खिदमत नहीं। इस वक्त मुझे अचानक ख्याल आया कि मुझे ये टेलीफोन कॉल्स आपके इल्म में लानी चाहिए और मज़ीद कोई बात होगी तो फ़ोन करूँगी। आपको पहले ही फ़ोन करना चाहिए था। बहरहाल परेशान ना हो, मैं अपने तौर पर मालूम करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा कौन कर रहा है। अच्छी बात है। वो फ़ोन रख कर मुतमईन हो गई थी। फिर सुबह डाइनिंग रूम में आते हुए उन्होंने सोचा कि फ़ाइका को समझा देंगी कि इस फनदार नामी किसी शख्स का फ़ोन अटेंड ना करे। फ़ाइका ने नाश्ता कर लिया। उन्होंने डाइनिंग रूम में फ़ाइका को मौजूद ना पाकर मुलाजमा से पूछा, नहीं जी, वो तो आज कमरे से निकली ही नहीं। मुलाजमा ने बताया तो नागवारी से बोली, शहरी यहाँ नहीं है तो? फिर बात अधूरी छोड़कर वो खुद ही फ़ाइका के कमरे में आ गई और आके इसे लेटे देखकर इसी नागवारी से बोली, तुम नाश्ते पर नहीं आई? फ़ाइका उठकर बैठ गई, फिर माजरत करते हुए बोली, सॉरी मामा, मैं आ रही थी लेकिन मुझे बहुत ज़ोर का चक्कर आया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया तो मैं दोबारा लेट गई। चक्कर आया? उन्होंने सोचते हुए अंदाज में दोहराया, फिर इनके होठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई थी। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। इसने उठकर लाइट का बटन ऑन कर दिया और फिर इसका दिल चाहा बाहर लॉन में निकल जाए, लेकिन बेगम आफंदी जिस सख्ती से इसे आराम करने की ताकीद कर गई थी, इससे इसकी हिम्मत नहीं हुई कमरे से निकलने की, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं था कब आ जाती। वैसे रोज़ाना तो इस वक्त तक आ जाती थी, आज पता नहीं क्यों देर हो गई थी। वो सोचते हुए कमरे में ही टहलने लगी। कुछ देर बाद मुलाजमा आकर पूछा, बीबी आपके लिए जूस लाऊं? या अल्लाह! इसने रुक कर गहरी सांस खींची, फिर मुलाजमा से बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो जूस लाई थी, देखो वो रखा है, मेरा नहीं दिल चाह रहा पीने को। बेगम साहिबा कह कर गई थी कि मुलाजमा ने इस कदर कहा था कि इसने टोक दिया। वो जो भी कहेंगे तो कह गई थी, मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं खुद ले लूँगी या तुमसे कह दूँगी। अब तुम जाओ और ये जूस भी लेती जाओ। मुलाजमा इसके बिगड़ने पर खामोशी से जूस का गिलास उठाकर चली गई। वो कुछ देर बड़बड़ाती रही, फिर अपना ध्यान बटाने के लिए राबिया को फ़ोन कर डाला। दूसरी तरफ डॉक्टर अफ़ान ने फ़ोन उठाया था। अस्सलामु अलैकुम अफ़ान भाई, मैं फ़ाइका हूँ। इसने डॉक्टर अफ़ान को हेलो के जवाब में कहा तो खुश दिली से बोले, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। राबिया क्या कर रही है? इसने पूछा तो डॉक्टर अफ़ान हंस कर बोले, टीवी से खेल रही है। क्या मतलब? वो भी हंसी। रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में है। डॉक्टर अफ़ान ने इसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ी, मैं समझ गई, मुसलसल चैनल बदल रही होगी। इससे कहें अब ज़रा इस चैनल पर बात करें। अच्छी बात है। चंद लम्हों बाद राबिया की आवाज़ आई, कौन? सोहनी? नहीं, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। इसने कहा तो राबिया ने ताज्जुब से पूछा, मुझसे? क्यों? कल मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए। मैं घर पर नहीं थी, अपनी नंद के यहाँ गई हुई थी। राबिया ने फ़ौरन कहा, तो आकर मुझे कॉल बैक नहीं कर सकती थी, या तुमने अपने
CIL देखने की ज़हमत ही नहीं की। नहीं, मैंने आते ही चेक किया था, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। राबिया की साफ इनकार पर वो बुरा मानकर बोली, ये क्या बात हुई? आओगी भी नहीं और फ़ोन भी नहीं करोगी? हाँ, बस इस बात को छोड़ो और ये बताओ कैसी हो? शहरियार कैसे हैं? राबिया ने इसे बहस से रोकते हुए पूछा। शहरी लाहौर गए हैं और मैं बहुत बोर हो रही हूँ, इसने कहा तो राबिया फ़ौरन बोली, मेरे पास आ जाओ। अच्छा, तुमने ना आने की कसम खा ली है और मैं आ जाऊँ? इसने टोका। सुनो, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं बहुत खुदसर और ज़िद्दी हूँ, लिहाजा मुझे बार बार मत टोको। और अगर चाहती हो कि हमारे दरमियान कोई रंजिश, कोई दूरी ना हो, तो जब तुम्हारा मुझसे मिलने को दिल चाहे मेरे घर आ जाना, लेकिन कभी मुझे अपने घर आने को मत कहना, समझी? राबिया ने तंबीही अंदाज में बावर करवाया तो वो खामोश हो रही। सुनो, कदरे तौक़ुफ़ से राबिया पुकार कर पूछने लगी, फिर कब आ रही हो? आऊँगी किसी दिन और सारा दिन तुम्हारे साथ रहूँगी, इसने गोया हथियार डाल दिए। ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी, राबिया ने खुश होकर कहा। अच्छा, खुदा हाफिज़। इसने फ़ोन बंद कर दिया और राबिया को ही सोचने लगी थी कि मामा का ख्याल आया। 8 बज चुके और वो अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गई मामा? इतनी देर तो उन्होंने कभी नहीं की। वो खुद से कहते हुए कमरे से निकल आई और रशीद को बुलाकर पूछने लगी, मामा का फ़ोन तो नहीं आया था? नहीं जी, 8 बज गए, इसने तशवीश का इजहार किया। आपके लिए खाना लगाऊं? रशीद ने पूछा। नहीं, मामा आएंगी तो इनके साथ खाऊंगी। वो मना करके वापस कमरे में आकर लेटी और बेगम आफंदी को सोचते हुए सो गई थी। फिर सुबह ही इसकी आंख खुली थी और अपने करीब शहरियार को देखकर वो बहुत हैरान हुई, इसकी आमद पर नहीं बल्कि अपनी बेखबरी पर कि इतनी गहरी नींद तो वो कभी नहीं सोई थी। शहरी, इसने इस ख्याल से बहुत आहिस्ता से पुकारा कि वो अगर गहरी नींद में होगा तो दोबारा नहीं पुकारेगी, लेकिन शहरियार ने इसकी पहली पुकार पर ही आंखें खोल दी। आप जाग रहे थे? वो ज़रा सा हंस कर बोली। जगा कर पूछती हो, जाग रहे थे? वो इसकी थोड़ी पर पेशानी टिकाकर बोझल लहजे में बोला। रात कब आए थे? इसने पूछा। 1 बजे। तुम बहुत गहरी नींद सो रही थी, जब ही मैंने नहीं उठाया, शहरियार ने कहा तो फिर खुद ही हैरान होकर कहने लगी, हाँ, रात में बहुत जल्दी सोई थी। इस वक्त मामा भी नहीं आई थी और मैं इन ही का इंतज़ार कर रही थी, तभी मुझे नींद आ गई और मैं इतनी गहरी नींद कि आपके आने का पता ही नहीं चला। अब तो पता चल गया ना, चलो सो जाओ। शहरियार भी उठना नहीं चाहता था। नहीं, मुझे भूख लग रही है, रात में खाना खाए बगैर सो गई थी, अब मेरा पेट बिल्कुल खाली है और अगर मुझे फ़ौरन खाने को कुछ नहीं मिला तो? इसे एकदम बड़े ज़ोर की उबकाई आई तो मुंह पर हाथ रखकर फ़ौरन उठकर वॉशरूम की तरफ भागी थी। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से निकली तो इसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। फायका शहरियार की परेशानी इंतहा को छू रही थी। इसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठाते हुए पूछने लगा, क्या हुआ जान? मामा को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो झुककर अपनी शर्ट के दामन से अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, क्या ठीक हो? ये कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टर कह रही थी इब्तदाई 2-3 महीने ऐसे ही वोमिटिंग होती है। वो बताकर झीम गई तो इसके झींपने से शहरियार समझ कर जोर से चिल्लाया, फायका, मैं अभी मामा को बताता हूँ, इन्हें पता है। वो इसका हाथ खींच कर बोली, कल मामा ही तो मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। अच्छा, फिर क्या कहा था डॉक्टर ने? शहरियार ने शरारत से पूछा तो शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे नहीं पता। मुझे पता है, डॉक्टर ने कहा होगा कि शहरी, खाली पेट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो टोक कर बोली, ओह हाँ, मैं अभी लाता हूँ। क्या लाऊं? शहरियार ने जाते जाते पूछा, लेकिन फिर इसका जवाब सुने बगैर कमरे से निकल गया तो निढाल सी दोबारा लेट गई। कुछ देर बाद वो जूस लेकर आया तो इसके पीछे बेगम आफंदी को देखकर वो फौरन उठ बैठी। कैसी तबीयत है बेटा? बेगम आफंदी ने शहरियार के हाथ से जूस का गिलास लेकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। रात मुझे एक पार्टी में जाना पड़ गया, जब भी देर हो गई थी और तुम खाना खाए बगैर सो गई थी। ऐसी हालत में खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आइंदा मेरा और शहरी का भी इंतज़ार नहीं करना, तुम्हें जब भूख लगे खा लेना, समझी? जी। शहरी, तुम्हारे फ्रिज में हर वक्त ताज़ा फल मौजूद रहना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक्स भी रखो। इसके अलावा बेटा, तुम्हारा जिस चीज़ को दिल चाहे। बेगम आफंदी दोनों से मुखातिब थी। हाथी के पाए खाने को दिल चाहे तो भी बता देना, मैं ला दूंगा। शहरियार ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा। शहरी, बचपना छोड़ो। बेगम आफंदी से टोक कर मज़ीद कुछ कहना चाहती थी कि वो बदजिस्ता बोला, अब मैं बाप बनने वाला हूँ। वो किसी तरह अपनी बेसाख्ता हंसी नहीं रोक सकी तो बेगम आफंदी एक नज़र इस पर डालकर कमरे से निकल गई। अजीब हैं आप भी, वो इस तरह हंसते हुए बोली। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? वो मुस्कुराता हुआ इसके पास आ बैठा। अच्छा छोड़ें, ये बताएं आज कौन सा दिन है? इसने पूछा तो बच्चों की तरह खुश होकर बोला, संडे।
आज माँ बदौलत की छुट्टी है जी, और शाम में हमें मामू जान के यहाँ जाना है। इसने कहा तो याद आने पर बोला, अरे हाँ, अज़ाम भाई आए थे, आज जाना है जी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मैं कोई और प्रोग्राम बनाने वाला था। और कोई प्रोग्राम नहीं, चलें, मेरा ख्याल है नाश्ता लग चुका होगा, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। और फिर शाम को जब वो मामू जान के यहाँ जाने के लिए तैयार होकर शहरयार के साथ कमरे से निकली तो लाउंज में मौजूद बेगम आफंदी ने दोनों को देखा, लेकिन फिर मुखातिब शहरयार को किया, कहाँ ले जा रहे हो इसे? मामा, वो फ़ायका के कज़न आए थे ना, वो इनवाइट करके गए थे, अभी हम इनके यहाँ जा रहे हैं। शहरयार ने बताया तो बेगम आफंदी बज़ाहिर नरमी से बोली, लेकिन बेटा, फ़ायका की तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर ने रेस्ट बताया है। अरे सारा वक्त रेस्ट ही तो करती हूँ मामा, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो फ़ौरन बोली थी, अभी ठीक तो हो, लेकिन बेगम आफंदी कुछ कहते कहते रुक गई तो शहरयार से बोली, चलें? ओके मामा, खाने पर इंतज़ार नहीं कीजिएगा। शहरयार ने कहा तो इसने बहुत उजलत में कदम आगे बढ़ा दिए, इस डर से कि कहीं बेगम आफंदी किसी बहाने रोक ना लें, जबकि शहरयार वहीं खड़ा था। शायद मामा कुछ कह रही थी और वह इनकी बात सुनने के बाद इसके पीछे आया तो टोकते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो शाम भी नहीं ढली। वो कुछ नहीं बोली और यूं बन गई जैसे बेध्यानी में बिल्कुल बाहर निकल आई हो। फिर जब गाड़ी में बैठी तो पूछने लगी, क्या कह रही थी मामा? जल्दी आने को कहा है। शहरयार बताकर पूछने लगा, तुम्हें घर मालूम है मामू जी का? बिल्कुल मालूम है, आंखें बंद करके जा सकती हूँ। इसने कहा तो शहरयार ने ताज्जुब का इजहार किया, वाकई जी, वो मेरा ननियाल है। अरे हाँ शहरी, आपका ननियाल कहाँ है? आई मीन नाना नानी मामू वगैरह। इसे एकदम ख्याल आया कि इस तमाम अरसे में इसने कभी बेगम आफंदी के मैके के किसी फ़र्द को नहीं देखा था और ना ही जिक्र सुना था। मेरी सिर्फ एक खाला हैं जो अमेरिका में होती हैं। शहरयार ने बताया तो इसने फ़ौरन पूछा, शादी में नहीं आई थी? नहीं, मामा बताती हैं वो जब से शादी होकर अमेरिका गई हैं तो सिर्फ एक बार पाकिस्तान आई थी, और इस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए यूँ समझो मैंने इन्हें नहीं देखा। हैरत है। किस बात पर? शहरयार ने इस पर नज़र डालकर पूछा, आपकी खाला पर। क्या इनका अपनों से मिलने को दिल नहीं चाहता? स्पेशली मामा से। इसने कहा तो कंधे उचका कर बोला, मामा जो मिलाती हैं। अभी भी मामा अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से कैंसिल कर दिया है। मेरी वजह से? हाँ, बल्कि तुम्हारे बच्चे की वजह से। पता है मामा बहुत खुश हैं, इस दिन शिद्दत से इंतज़ार था। वो बेगम आफंदी की खुशी पर खुश हो रहा था। वो क्या कहती, इसे देख कर रह गई। फिर जब मामू जी के घर के सामने गाड़ी रुकवाई तो शहरयार गेट पर नज़र डालकर बोला, तो यहाँ तुम आंखें बंद करके आ सकती हो। वो हंसती हुई अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल कर उतर गई, और जब वो गाड़ी लॉक करके आया तब इसके साथ अंदर दाखिल हुई तो पहले मरहले पर मामू जी से सामना हो गया। अस्सलामु अलैकुम। दोनों ने एक साथ सलाम किया तो मामू जी ने इनके सर पर हाथ रखा, फिर शहरयार को गले लगा लिया। मामी जी कहाँ हैं? वो पूछती हुई कमरे में आई तो आगे असमा इसे देखकर फ़ौरन उठती हुई बोली, बड़े लोग आ गए, क्या मतलब है तुम्हारा? इसने नाराज़ी का से टोका तो असमा बाजू फैलाकर बोली, पहले मिल तो लो। नहीं, पहले वजाहत करो। वो असमा को छोड़कर मामी जी के गले लग गई। क्या वजाहत करूं? इतने दिन हो गए तुम्हें आए हुए और एक फ़ोन तक नहीं किया। अभी देखो कैसे इतरा रही हो। ठीक है, मत मिलो, मैं मरी नहीं जा रही। असमा रूठ गई। फिर कहाँ? इस्लामाबाद जा रही हो? वो असमा को गुदगुदा कर बोली तो असमा ने इसे गले लगा कर शिकवा किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बको मत। ये बताओ अज़ाम भाई कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे। और तुम शहरयार भाई को कहाँ छोड़ आई? असमा को एकदम शहरयार का ख्याल आया था। मामू जी के साथ हैं, इसने बताया तो असमा अपनी अम्मी को देखकर बोली, चलें अम्मी, शहरयार भाई से मिल लें। फिर इससे कहने लगी, पता है राबिया 2-3 बार आ चुकी है, वो अकेली है ना, मेरा मतलब है इसकी सास वगैरह तो यहाँ है नहीं, इसलिए इसका हर जगह आना जाना हो जाता है। इसने कहा तो असमा पूछने लगी, तुम्हारी सास मना करती हैं? नहीं, मना तो नहीं करती, बस मुझे खुद ख्याल रहता है। खैर चलो, शहरी से मिल लो। चलें मामी जी। इसने मामी जी का हाथ पकड़ लिया और इनके साथ ड्राइंग रूम में आई तो आगे अज़ाम भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो हमेशा की तरह इनकी तरफ खींचती चली गई थी। इसके अंदाज में कुछ ऐसी बेख्तियारी थी कि शहरयार ने न सिर्फ महसूस किया बल्कि ठिठक भी किया था। इसने मामू जी के घर से ही शहरयार की खामोशी और कदर सद मोहरी महसूस कर ली थी। फिर वापसी का तमाम रास्ता भी वो बोलती रही थी। शहरयार बस हूँ हाँ करता रहा और अभी भी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। और वो ठिठकी तो पहले मरहले पर ही थी जब मतहश होकर सोचने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई जो शहरयार को बुरी लगी है, और वो बराह रास्त इससे कह भी नहीं रहा। हालांकि दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो थी,
کہ اپنی ہر بات ایک دوسرے سے کہہ دیتے تھے۔ ابھی کتنی بار اس نے چاہا کہ خود اس سے پوچھ لے کہ وہ اچانک خاموش کیوں ہو گیا ہے، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کا وہم کہہ کر ٹال دے گا، جس سے اس کو تشفی نہیں ہوگی۔ لائٹ آف کر دو، شہریار نے اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اسے مخاطب کیے بغیر کہا تو اس انداز پر اسے مزید حیرت کے ساتھ دکھ بھی ہوا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ خاموشی سے لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی، لیکن شہریار نے روزانہ کی طرح اسے اپنے بازو کے حلقے میں نہیں لیا۔ اس کے برعکس کچھ دیر بعد دوسری طرف کروٹ بدل گیا تو وہ رہ نہیں سکی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، شہرین ناراض ہیں کیا؟ نہیں، شہریار نے فوراً اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ میں کب سے پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو بتائیں، لیکن خدا کے لیے منہ نہ موڑیں۔ وہ آخر میں رو پڑی۔ فائقہ، کم آن یار، تمہیں پتہ ہے مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ اگر رو گی تو میں کمرے سے چلا جاؤں گا، شہریار نے ٹوکتے ہوئے کہا تو اس کے سینے میں منہ چھپا کر اور شدت سے رونے لگی۔ سنو، میری بات سنو فائقہ، شہریار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پکارے جا رہا تھا اور وہ اس کی پکار پر مزید بکھر رہی تھی۔ تب شہریار نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی اور اس کی روانی سے چھلکتے آنسو دیکھ کر بگڑ گیا۔ سنو، جب میں مر جاؤں تب اس طرح رونا۔ اس کا دل دہل گیا اور بجائے آنسو صاف کرنے کے بالکل غیر ارادی طور پر تکیے میں منہ چھپا لیا تو شہریار جیسے زچ ہو کر اس کے قریب آ گیا اور تکیہ کھینچ کر نرمی سے پوچھنے لگا، کیوں رو رہی ہو؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو کہیے نا، کیوں نہیں کہتے؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ او گاڈ، کیا کہوں؟ وہی جو آپ کے دل میں ہے۔ میرے دل میں تمہارے محبت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس کے آنسو اپنی انگلیوں پر سمیٹتے ہوئے بولا، میں مانتی ہوں، لیکن نہیں۔ وہ ٹوک کر بولا، چلو سو جاؤ ورنہ میں ماما کو بلا لاؤں گا۔ بلا لائیں، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ سو گی نہیں؟ نہیں، آپ کو سونا ہے، سو جائیں۔ وہ ہنوز روٹھی ہوئی اور کچھ ضد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، اور تم کیا کرو گی؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ شہریار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گیا، لیکن اس کو نیند اس کے سونے کے بعد ہی آئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کافی دن چڑھایا تھا، لیکن کھڑکیوں پر دبیس پردوں کی وجہ سے فوراً اسے احساس نہیں ہوا۔ جب ضروریات سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلی تب گلاس وال سے ادھر تیز دھوپ کو دیکھ کر جہاں حیران ہوئی، وہاں اس خیال سے بے حد آزردہ کہ شہریار اسے اٹھائے بغیر آفس چلا گیا تھا۔ شہری نے اٹھایا ضرور ہوگا، مجھے پتہ نہیں چلا، آج کل نیند بھی تو ایسی آتی ہے۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ بی بی، آپ کے لیے ناشتہ لگاؤں؟ ملازمہ نے فوراً آ کر پوچھا تو چونک کر بولی، نہیں، ابھی صرف جوس لے آؤ۔ جی، بڑی بیگم صاحبہ کہہ گئی تھی آپ ناشتہ ضرور کریں، ملازمہ نے کہا تو کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی کہ مان فون کی بیل پر اس کا دھیان ادھر منتقل ہو گیا اور ملازمہ کو اچھا کہنے کے ساتھ چائے کا اشارہ کر کے اس نے شہریار کو سوچ کر فوراً ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو فائقہ؟ دوسری طرف عزام تھے۔ ارے عزام بھائی، اس نے حیرت خوشی کا اظہار کیا۔ بھول جاؤ عزام بھائی کو۔ عزام کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، شادی شدہ عورت ہو۔ عزام نے ابھی اس قدر کہا تھا کہ وہ ذرا سا ہنسی کے ساتھ بولی، پھر یہ کہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے تمہاری میرے ساتھ وابستگی شہریار کو بری لگے، کیونکہ ابھی تمہاری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ شہریار کو سمجھنے میں عزام دھیرج سے سمجھا رہے تھے کہ اس نے ٹوک دیا، ارے نہیں عزام بھائی، آپ شہریار کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ، رات میرے ہاتھ سے جانے کے بعد شہریار کا رویہ تمہارے ساتھ؟ عزام ایک دم خاموش ہو گئے، لیکن وہ اس پر ہی ٹھٹک گئی اور فوراً کچھ نہیں بول سکی تو قدر توقف سے عزام اسے متوجہ کر کے بولے، سنو، اپنی بے اختیاریاں کو لگام دو، اس سے پہلے کہ کوئی الزام آئے۔ عزام نے اپنی بات کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن وہ کتنی دیر سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ البتہ یہ خیال ضرور تھا کہ شہریار کی اچانک خاموشی اور سرد موری کو انہوں نے نہ صرف محسوس کر لیا تھا بلکہ وجہ بھی سمجھ کر اب اسے خبردار کر رہے تھے۔ اوہ گاڈ! کتنی دیر بعد اس کے سینے سے گہری سانس خارج ہو رہی تھی اور اس کی نظروں میں وہ لمحہ آن سمایا جب وہ بے اختیار عزام کی طرف لپکی تھی۔ تو شہریار آفندی کو میرا بے اختیار عزام بھائی کی طرف لپکنا اچھا نہیں لگا۔ وہ خود سے بولنے لگی تھی، اور عزام بھائی کہہ رہے ہیں اپنی بے اختیاریوں کو لگام دو، کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ سارا دن خود سے ہی بولتی اور آخر میں سوالی نشان پر الجھتی رہی تھی۔ شام میں شہریار آیا تو اس بات پر ناراض تھی کہ ایک تو وہ صبح اٹھائے بغیر چلا گیا تھا، دوسرے سارا دن فون بھی نہیں کیا۔ جب ہی اس کے آنے پر رخ موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ شہریار نے اسے متوجہ کرنے کے لیے پہلے ہیلو کہا، پھر سلام کیا،
لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئی تو قریب آ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، کیوں نہیں؟ مجھے تو ضرورت ہے اور میں کروں گا۔ وہ اس کی ناراضی سمجھ کر دھڑلے سے بولا، لیکن میں نہیں کروں گی۔ وجہ؟ وہ واقعی غصے میں تھی۔ یعنی وجہ میں بتاؤں؟ آپ تو بالکل نہیں جانتے۔ احساس ہو تو جانیں۔ کم آن یار۔ شہریار اس کے بازو تھامنا چاہتا تھا لیکن اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ تم غصے میں؟ مجھے پتا ہے میں بہت بری لگتی ہوں۔ وہ فوراً بولی، اوہ بہت اچھی لگتی ہو، اور یقین کرو تمہارا یہ روپ دیکھنے کے لیے میں نے جان بوجھ کر تمہیں غصہ دلایا ہے۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر پوچھنے لگا، ویسے تمہارا غصہ کتنی دیر رہتا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ اچھا چلو یہ بتا دو، تم مانو گی کیسے؟ ہاتھ جوڑوں یا پاؤں پڑوں؟ وہ کہہ کر جھکنے لگا تھا کہ وہ چیخ پڑی، فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر روٹھے لہجے میں بولی، جائیے چینج کریں۔ ایسے نہیں، مسکرا کر کہو، بہت برے ہیں آپ۔ وہ کہہ کر قصداً مسکرائی تھی۔